Okay, a very good morning to one and all students present in my class. Uh, we shall proceed with the next part of our topic. As in the last lecture, we discussed about the Cauchy's theorem. We solved a few examples on the basis of a Cauchy's theorem. From today, we have to solve more numericals on the basis of a Cauchy's integral formula. Now, proceeding with the next part or next question. Hope my voice is audible to everyone and the screen is visible to everyone. Now proceeding with the next part or next question on the basis of Cauchy's integral formula. Cauchy's integral formula, once again I'm going to explain. Now here in a earlier problem, if you're aware about that, only single z0 was given, but here I'm just writing the type 2. Okay, so in a earlier, for the diploma students who joined directly second year, I'm just explaining because this is a new chapter. So just explaining the Cauchy's integral formula. Cauchy's integral formula state that whenever integral or whenever a closed integral whenever a closed integral f of z upon z minus z0 into dz is present, then we have to check first of all what we have to check, that is this z0, ये जो z0 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो पॉइंट इस फंक्शन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको चेक करना है whether this point lies inside the region or inside the contour or not. अगर inside the contour है then we have to use Cauchy's integral formula, and if it is lies outside the contour or outside the region or lies on the region, like as I mentioned in a previous example, you can see the recorded lecture so that you will understood about what are the concept we applied in a Cauchy's integral formula. So similarly we should apply here also, that is when integral or contour integral f of z upon z minus z0 into dz is there, we have to use, that is a Cauchy's integral formula is 2 pi I upon, or I'm just taking here n, so it will be a better understanding, 2 pi I n minus 1 factorial into f raised to n minus 1 into z0 into z0. This f of f raised to n minus 1 means what? अगर यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, तो this minus 1, so n minus 1, so यहाँ पे तो factorial आ जाएगा, but here we have to apply the differentiation concept. तो अगर यहाँ पे n equal to आपका 3 होता है तो आपको 2 times derivative करना होगा इस function का. तो and after that we have to substitute whatever the value of z0 is given, so we'll get the result. So this is known as a Cauchy's integral formula when the degree of n is given.
अगर n 0 है तो you can apply that is this part as it is, so no need to doing anything or anything more stuffs. So moving ahead with n equal to 1, if there, then this part will becomes by default 0. Now moving ahead with the type 2, so this is basically type 1. Now type 2 is what? Close integral phi of z upon z minus z1 into z minus z2 into dz, and z1 and z2 are both inside C. Inside C means contour के inside. Then what we have to apply here? Then again we have to apply the same concept or the same that is known as a Cauchy's integral formula. So we have to solve the numericals so that you will understand what is exactly concept. So today's first numerical is we have to apply, that is evaluate contour integral 3z square plus z upon z square minus 1 into dz, where C is the circle, mod of z equal to 2. Mod of z equal to 2. So this is the first numerical. On the basis of the two points are given, z1 and z2. So we have to simplify this part. This is z square minus 1. तो इसको हम लोग simplify कर सकते हैं. So from the solution point of view, I'm going to start solution. इस सर्कल, अब देखो यहाँ पे सर्कल दिया गया है. क्यों सर्कल दिया गया है? You can see that the circle mod of z equal to 2. Mod of z equal to 2 means what? A circle whose having radius is equal to 2. जिसका रेडियस आपको यहाँ पे 2 दिया गया है और सेंटर 0,0 आपको दिया गया है. So moving ahead with this part, the circle mod of z equal to 2 has center at 0,0 and radius radius 2. Now z square minus 1 equal to 0 gives, कौन सा दो इक्वेशन देगा अच्छी तरह से पता होगा. This is a square minus b square formula. So a square minus b is equal to what? Z minus 1 and z plus 1. Z minus 1 and z plus 1. Just a second. Z minus 1 and z plus 1 equal to 0. तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? दो पार्ट मिल गए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने. Z minus 1 and z plus 1 equal to 0. Now we have to check. अगर इसको इक्वल टू 1 करूंगा, 0 करूंगा, तो z इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एक 1 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? z इक्वल टू -1 मिलेगा फ्रॉम दिस पॉइंट.
So z equal to 1 and minus 1. Now I'm just drawing this circle, a circle whose radius is equal to 1. A circle whose radius is equal to 1. ये आपका सेंटर हो गया अगर आप कंसीडर करते हैं तो. Now this is, just a second. So this is center. I'm considering 0 comma 0, 0 comma 0, and this is x-axis. This is x-axis. This is y-axis. Now radius is clearly 1 and the point lies is z equal to 1 and minus 1. मतलब एक ये radius आपका यहाँ तक क्या है 2 है, यहाँ तक क्या आपका 2, तो we have to take this point here consider as a 1. तो ये आपका 1 हो गया. और दूसरा आप अगर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर पॉइंट मिलेगा तो ये आपका -1 बिकॉज 1 and -1, so kept as it is 1 and -1. Now if you can see that from diagrammatically or from circle, that is this point lies inside the circle or inside the region or inside the contour. The contour was given z mod of z equal to 2, means it means what, has center at 0 comma 0 and radius is what, 2. So radius is 2 and the point which we got from the function, which we got from function z square minus 1 equal to 0 gives z minus 1 and z plus 1 is equal to 0. From this we simplify and we got z equal to 1 and minus 1. So z equal to 1 and minus 1. So according to that, or according to this structure or diagram, you can see that z equal to 1 and minus 1 lies inside the circle. Circle के अंदर हमको ये पॉइंट मिल रहे हैं. अगर सर्कल पे मिलता या सर्कल के बाहर ये पॉइंट जाता, then we can say that it is not followed the Cauchy's integral theorem or in Cauchy's integral concept. So I'm just writing z equal to 1 and minus 1, both these points lie inside the circle. Lie inside the circle. So we use partial हमको इसको लिखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो अच्छी तरह से, 1 by z square minus 1 is equal to 1 by 2 into 1 upon z plus 1 और minus 1. अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ कैसे आया है. 1 अपॉन z प्लस 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली लिखा हूँ, ये समझ में शायद नहीं आया हो, तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शंस रूल यूज़ किया जाता है. आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस साइड फ्रॉम दिस सर्कल्स के इस साइड में सॉल्व करता हूँ इसको. नाउ सी योर फंक्शन इज क्लियरली f ऑफ z. आपका f ऑफ z क्या था? Your function is clearly mentioned, or not function, sorry. The point is clearly mentioned 1 upon z square minus 1 is equal to. तो इसको ऐसा लिख सकते हो a upon z minus 1 plus b upon z plus 1. अभी a और b कैलकुलेट कर सकते हो वेरी इजीली. So that 1 is equal to, डायरेक्टली लिखता हूँ ये पार्ट, a into z plus 1 plus b into z minus 1. a फाइंड आउट करना है, b को आपको 0 करना होगा.
क्रॉस मल्टीप्लाई किया है फिर इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, तो ये पार्ट कैंसिल होके 1 ही मिलेगा आपको. नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 1, देन दिस होल पार्ट इज 0 एंड 1 प्लस 1 2, तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 1/2. a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2. 1 प्लस 1 2, तो 2a इज इक्वल टू 1, सो 1/2 इज इक्वल टू a. Now secondly, when I substitute z equal to -1, -1 plus 1 0, this whole part will be treated as a 0. -1 is -2. b is equal to, you will get as a -half. So a equal to 1/2, b is equal to -1/2. तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको 1/2 इंटू जेड -1 -1/2 जेड प्लस 1. वही 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो 1/z -1 -1/z प्लस 1 आपको मिल रहा है. सो होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन कि ये स्टेप कैसे आ गया था. डायरेक्टली समझने के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन. अगर डायरेक्ट आपको आता है विदाउट सॉल्विंग दिस, तो भी आप लिख सकते हो, मार्क्स आपके लॉस नहीं होंगे या मार्क्स आपके कुछ भी कट नहीं होंगे. एंड एंड एफ ऑफ जेड आपका क्या है, मेन फंक्शन हमेशा याद रखने का, कॉचीज में न्यूमरेटर में होता है. तो दिस इज 3z स्क्वायर प्लस z, 3 square z plus z. So we have to simplify one by one. एक एक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रल और कॉन्टर इंटीग्रल 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z स्क्वायर -1 इंटू dz. ये पूरा फंक्शन दो पार्ट में हो गया है डिवाइड, तो उसको सेपरेटली यहाँ पे लिखना होगा आपको. 1/2 तो कॉमन है दोनों के लिए, तो वो एज इट इज साथ में लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो या फिर अलग अलग लिख सकते हो. सो काउंटर इंटीग्रल 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z -1, फिर -1/2 काउंटर इंटीग्रल 3z स्क्वायर अपॉन z प्लस 1, सॉरी 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 1 इंटू dz. यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन. अभी इसमें सीधा अप्लाई करोगे आप कौन सा फॉर्मूला, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. नाउ कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, जो n रहेगा यहाँ पे वो n-1 होगा. अब यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो इधर कितना है, n1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0. एंड एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये पार्ट आपको सॉल्व ही नहीं करना है. n-1 1 होगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एट द एंड रिजल्ट, 2πi मिलेगा आपको. ये पूरे का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 2πi. ऐसा लिखते हैं हम लोग इस पार्ट को, 1/2 इंटू 2πi इंटू f(1) बिकॉज z0 क्या था हमारा 1 है यहाँ पे, f(1) माइनस 1/2, इधर भी आपका क्या आएगा 2πi, और ये होएगा आपका f(-1), सॉरी f डैश नहीं आना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव एक भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल फंक्शन आएगा f(-1). किस में रखना है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है. वेर f(z) आपका क्या है, देखो अच्छी तरह से 3z स्क्वायर प्लस z है, तो उसमें आपको 1 यहाँ पे रखना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी दैट 2 गेट कैंसल, सो πi f(1) मतलब इसमें रखोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर, ये माइनस πi आप रखोगे 3 इंटू -1 और उसका स्क्वायर है, फिर -1 है.
So according to that, after solving this part, this will becomes 4 pi I. So 4 pi I, this will becomes minus pi I into 3 minus 1 square. So 3 minus 1 will becomes 2. So minus 2 pi I. So finally you will getting what? 2 pi I, और ये आपको रिजल्ट आता है 2 pi I. So this is our problems when z1 and z2 2 points are given. जो फर्स्ट टाइप था उसमें सिर्फ z1 था या z0 जिसको कह सकते थे आप, सिर्फ एक ही पॉइंट आपके लिए दिया गया था. वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम. This problem asks for 6 marks, sometime for 8 marks. So be aware about this concept कि किस तरह रहता है. If there is be online examination, the maximum marking scheme will be 5 marks. But if there will be maximum 99.99% chances are there, the same for examination which will be going to be held as a offline. So evaluate integral, close integral 3z square plus z upon z square minus 1 into dz, where c is the circle mod of z2. एकदम सीधा सिंपल है. जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो कंडीशन दिया है, वो कंडीशन प्रॉपरली रखो. So mod of z equal to 2 is given. The mod of z equal to 2 means it is a circle having center 0 0 and radius equal to 2. डिनोमिनेटर जो है वो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है. न्यूमरेटर सिर्फ फंक्शन के तौर पे काम होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होगा. So we have to utilize here. So according to that, you can see that both these points lie inside the circle. तो दोनों पॉइंट इनसाइड द सर्कल हैं, तो इसको हमने सेपरेट कैसे किया है? 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 को a अपॉन जेड माइनस 1 प्लस b अपॉन जेड प्लस 1 से, और ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमको मिल गया है. तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 बी रिटर्न एज 1 बाई 2 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई जेड प्लस 1. एंड एफ ऑफ जेड आपको ऑलरेडी दिया है. हमेशा याद रखने का, कॉचीज सब जब भी सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स आपको मिलेगा वो आपका फंक्शन होगा. सो प्लीज क्लियर विद दिस थिंग्स, अदरवाइज हम बहुत बार कंसिडर कर लेते हैं पूरे टर्म को फंक्शन, और फिर एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है क्योंकि जंबल हो जाता है वो टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी we just simplify the term. हमने सिर्फ टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है. यहाँ पे जो मेन फंक्शन दिया था z स्क्वायर माइनस 1 को 2 बार में लिखा है, तो इस तरह अगर दोनों को हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वही टर्म हमको लिखना रहेगा. यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे 1 है. जब 1 है अगर तो डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पूरे फंक्शन में जो भी यहाँ पे पॉइंट है उसको लिख देना है सिर्फ और सिर्फ. यहाँ पे प्लस 1 है मतलब ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि इक्वल टू होके जाएगा वो. z माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू z माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू माइनस 1, सॉरी 1, एंड z प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू माइनस 1. तो जो भी पॉइंट्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो हमने लिख दिया है. और उसके बाद ये फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है f ऑफ z, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेफिनेटली विल गॉट द रिजल्ट्स एंड we solve the contour integral. So this kind of problems are going to be asked in examination. Now one more numerical I'm going to take, and after that numerical I'm going to stop the lecture. अगर किसी को कुछ डाउट है तो you can ask anyone from diploma students as well as regular students. So z square minus 1 0 क्यों लिया? Yeah. So जब भी in the initial stages. हाँ. Because you are a direct second year. Yes sir. Yes sir. Okay. So see, whenever we have to find a point, जब भी आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉचीज इंटीग्रल में कि एनालिटिक होना चाहिए फंक्शंस. तो यहाँ पे जब कॉचीज इंटीग्रल में हम एनालिटिक फाइंड आउट करना है हमको, तो हमको फंक्शन का जो पार्ट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ऑलवेज वी हैव टू टेक, जब भी हमको फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो डिनोमिनेटर इक्वल टू आपको 0 लेना ही है. मतलब ये जो पॉइंट है, जो रूल है, वो z माइनस z0 का रूल है. z माइनस z0 इज इक्वल टू
0. So according to applying this concept, we always, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा और कॉचीज इंटीग्रल के या कॉन्टर, बेसिकली इट इज नॉट नोन एज अ कॉचीज, कॉचीज का तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट कॉन्टर इंटीग्रल में कभी भी डिनोमिनेटर इक्वल टू आपको 0 ही लेना है, क्योंकि जब तक आपको पॉइंट्स नहीं पता रहेंगे तब तक आप फंक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसमें इंटीग्रेशन कहीं नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो रीजन दिया है उसमें इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड अगर है तो ही उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आउटसाइड है तो वो वैल्यू आपके लिए कुछ कोई भी मानी नहीं रखती है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अ 0। क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके Sir, from where did we get 2 pi 1 sir above? Where we have replaced 3z? व्हाट 2 पाई आई? हाँ sir. इट इज इन फॉर्मूला डियर। Okay. ये देखो एक मिनट, इट इज इन क्लियर फॉर्मूला, सी 2 पाई आई। Yes sir, yes sir, yes sir. Sorry. Yeah. So it is in formula, फॉर्मूले में ही आपको 2 पाई आई दिया गया है डायरेक्टली, और अगर n का पावर 1 है मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं निकालना है आपको, सिर्फ फंक्शन में जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, z माइनस 1 है, मतलब वो z इक्वल टू 1 रहेगा, इसलिए f ऑफ 1 रखा है। यहाँ पे z प्लस 1 है तो इसलिए वो f ऑफ z इक्वल टू माइनस 1 रहेगा, इसलिए f ऑफ माइनस 1 रखा है। So this is actually, anyone, any more doubts? सर ये कौन सा चैप्टर है सर ये वाला? This is a second chapter of EM4. Second chapter है। First chapter was a line integral or complex integral. Second chapter is Cauchy's theorem. तो ये second chapter है आपका अभी EM4 के लिए। सर आप बुक कौन सा प्रेफर करते हो सर? Basically, I will explain about the books and all the things. No worry, no need to take any tension. Or basically, we are following the Kumbhojkar, G.B. Kumbhojkar book for EM4 as well as EM3 engineering mathematics के लिए आपको कुंभोजकर बुक फॉलो करना है। Which one is a very considered as a Mumbai University is a टेक्स्ट बुक के तौर पे उसको यूज किया जाता है बेसिकली। सर मेरे पास कुंभोजकर का बुक तो है सर, पर उसमें ना सर सेट्स वो सब दिखा रहा है। हाँ, मेरे तो पास जो है फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर द सिलेबस हैज बीन चेंज। ओके सर। फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर तुम्हारा सेम 3 भी जो था, सेम 4 भी जो है, ये सिलेबस इस साल से चेंज हो गया है। वो जो आप सेट थियरी पढ़े होंगे या फिर जो आप उसमें ग्रुप थियरी होगा, ग्राफ थियरी होगा, ट्रीज होगा, ये जो था ये पिछले साल तक था। फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर the syllabus is totally changed. Only few chapters are few modules are kept as it is, rest all modules are changed. ओके सर। So either from my point of view, please don't purchase any textbook or something, because your library is going to provide 2 books for a 1 week. Already I think आपको orientation में बोला ही होगा, तो बुक वगैरह परचेस मत करो। पूरे लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड ही हो रहे हैं, तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ है क्वेश्चन बैंक वगैरह, वो भी मैं दूंगा, प्लस अगर पीडीएफ वगैरह के नोट्स हैं तो वो भी मैं अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे। अगर इसके बाद भी अगर आपको टेक्स्ट वगैरह रिक्वायरमेंट होता है तो जस्ट विजिट अ कॉलेज, बिकॉज नाउ डेज द कॉलेज आर वर्किंग, कॉलेजेस वर्किंग। 15 से तो ऑलमोस्ट स्टाफ भी थोड़े बहुत रहेंगे वहाँ पे, तो आप कभी भी जाके बुक वगैरह 1 वीक के लिए परचेस कर सकते हो। बिकॉज देखो 1 सेमेस्टर का रिक्वायरमेंट होता है, 1 सेमेस्टर बाद आपके लिए वो बुक यूज में नहीं रह जाती है, तो इसलिए गाइड करूँ। बाकी आपका अपना चॉइस है, आपको अगर परचेस करना है तो यू कैन परचेस एंड गो अहेड। ओके ओके, एनीवन? Sir, what about first module? विच वन? फर्स्ट मॉड्यूल नहीं बेटा, फर्स्ट चैप्टर। वो तो 2 लेक्चर का था, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो छोटा ही। आप एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर मेरा देख लो, उसके बाद एक आध दिन में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था हमारा, बहुत छोटा चैप्टर था। ओके। और सर जो यूनिवर्सल के वेबसाइट पे जो 2019 का जो है वो ही हम लोग देखे ना?
व्हाट वो 2019? रिवाइज सिलेबस, जो आप सिलेबस चेंज हुआ है तो नहीं नहीं, 2019 का मैं सिलेबस गूगल दिखाना क्लासरूम हमको। में अपलोड करूंगा, कर भी दिया हूँ। गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी सिलेबस अपडेटेड है। आप ओके। गूगल क्लासरूम, ये जो EM4 का जो गूगल क्लासरूम है ना, हाँ। इस पे आप जाओगे तो पूरा सिलेबस है तुम्हारा। SC IT का सिलेबस, इवन पूरा मतलब IT का, BE IT का भी उसमें होगा, सबका है। तो उसमें अपडेटेड सिलेबस है, तो आप उसमें देख सकते हो। ओके सर, ओके। आपको जो भी मैथ्स रिलेटेड या जो भी कुछ भी चीजें हैं ना, वो सब गूगल क्लासरूम में अपडेटेड है। आप एक बार खाली गो थ्रू करो पूरा गूगल क्लासरूम, उसमें डेफिनेटली आपको सब चीजें मिलेंगी। ओके सर। ओके, एनीवन मोर डाउट्स रिगार्डिंग? Sir, where are the recorded lectures? It is the link is shared in a Google Classroom. It is Okay, sir. everything is present in a Google Classroom. So just see to it in a Google Classroom. उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो you people have my personal number in your WhatsApp group, so you can ping me there. So अगर वहाँ पे नहीं रखा है तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। Okay, sir. सर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है, पर मेरे को एक्चुअली सिलेबस नहीं दिख रहा था। सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आ रहे हैं मेरे को, सिलेबस है, खाली मैं बताता हूँ, एक मिनट। सिलेबस है SCIT सेम 4 में हो आप? हाँ सर। जस्ट अ सेकेंड। सर मैं सिलेबस सेंड करूँ, मेरे पास पड़ा है सिलेबस। नहीं, मैं ग्रुप में सेंड करूँ सिलेबस? अपडेट कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे नहीं है, वो शायद सेम 3 में रह गया है, तो सेम 4 में मैं अपडेट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आपस में शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं गूगल क्लासरूम में फिर से वो सिलेबस अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। और सर सेम 4 का मतलब M4 के लिए आपका मतलब गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं दिखा रहा है। M3 का है बट M4 का नहीं दिखा रहा है नहीं, M4 का गूगल नहीं क्लासरूम। रहेगा, आप ज्वाइन नहीं रहोगे इसलिए। मैं एक मिनट आपको नहीं सर, Yes, sir, वो same ग्रुप here. में आया नहीं है। जस्ट वेट। हाँ। सी, hope my screen is visible. See, this is my SCIT SEM4 EM4, right? तो अगर आप मेरे क्लासरूम में आप हो तो आपको दिखाएगा वो लिंक, ऐसा नहीं होगा। सी, दिस आर द 64 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, और अगर आप हो मेरे क्लास में तो ये लिंक आपको दिखा रहा होगा, मीट लिंक। यस सर। तो यही आपका मीट लिंक है। ओके, Sir, can you send the SAM4 Google Classroom link again? गूगल क्लासरूम लिंक Yes, अभी तो sir. मैं व्हाट्सएप पे, मेरे को बाद में आना पड़ेगा, तो मैं लेक्चर के बाद फिर से शेयर कर दूंगा। नो Okay, नीड। sir. ओके, तो मैं लिंक फिर से शेयर कर दूंगा, या फिर आप ये गूगल क्लासरूम कोड से आप एक बार ज्वाइन हो सकते हो। 7P2STMB ये आपका क्लास कोड है। तो अगर गूगल क्लासरूम में जाके ऐड क्लास में ये कोड डालोगे तो आप खुद ब खुद ऐड हो जाओगे। बट द कंडीशन इज यू हैव टू यूज द यूनिवर्सल जीमेल आईडी, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सल जीमेल आईडी से नहीं ज्वाइन होते हो तो आप रिमूव हो जाओगे खुद ब खुद, क्योंकि मैनेजमेंट का जो यहाँ पे जो पर्सन है वो आपको रिमूव कर देंगे। जो भी यूनिवर्सल विदाउट यूनिवर्सल ईमेल आईडी है तो उनको रिमूव करते चले जाएंगे। 1-2 दिन रह सकते हो आप, अदरवाइज आप बाद में रिमूव हो जाओगे इस जगह से। सी, दिस आर द लिंक्स आर गिवन। लिंक यहाँ पे दिया गया है, टाइम टेबल यहाँ पे है। मैं सिलेबस अपडेट कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड वी हैव अगेन, मतलब एक लिंक और मैंने भेजा था सेम 3 का। जस्ट अ सेकेंड। सेम 3 में भी SCIT का मैंने एक क्लासरूम बनाया, SCIT DSE सेम 3 EM3। तो इसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज योर सेम 3 लेक्चर्स विल बी हियर ओनली। तो शायद कल लेक्चर रहेगा हमारा। सो दिस आर दी ऑलरेडी आई थिंक स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन। जो नहीं ज्वाइन हुए उनको आप मैसेज करो, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट। मेरा लेक्चर शायद कल ही है, आज नहीं है इसलिए। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
And don't left lecture because I will take the attendance at last. So please don't left between the lectures because यहाँ पे कैसा होता है real time monitoring होते रहता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अब प्रेजेंट रह के भी आप absent हो जाओ बाद में. So now moving ahead with the next problem. As I told, that is I have to take one more example. So second question is evaluate contour integral e raised to 2z upon, sorry, not e raised to 2z. I'm just taking next two examples. Sine of pi into z square plus cos of pi into z square upon z minus 2 and z minus 3 into dz, where C is the circle mod of z equal to 4. Now see here, mod of z equal to 4 is a circle with radius 4 and center is 0, 0 or origin. If you're not supposed to write 0, 0, you should write at origin. तो यहाँ पे तो एकदम सीधा सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है. मैं डायरेक्ट फटाफट सॉल्यूशन इस पे आता हूँ. सॉल्यूशन mod of z equal to 4 is a circle with center 0, 0 with center 0, 0 and radius 4. आपको ये लिखना है, लिखने की आदत डालो. रेडियस 4 बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में इतने ज़्यादा कुछ है नहीं कि तो हर स्टेप को आपको जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ सिमिलर वे से आपको लिखना है एग्जाम में भी. z equal to 2, z equal to 3, the points lie inside this circle. Inside the circle, and we have to use the partial fraction again. तो partial fraction से ही आपको फिर से ये part को आपको solve करना होगा. So that we have to move ahead with this part. So this part will becomes 1 upon z minus 2 z minus 3, which is equal to a upon z minus 2 plus b upon z minus 3. सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग इस पार्ट को लिखते हैं तो सिमिलर वे से आपको जैसे प्रीवियस था a इंटू z माइनस 3 प्लस b इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 1. a फाइंड आउट करना है, b को 0 करना होगा तो a इक्वल a नॉट. If I substitute z equal to 2, 2 minus 2 will become 0, 2 minus 3 will becomes minus 1, so a is equal to minus 1.
because when I substitute 2 here, so 2 minus 3 is minus 1, so minus a. So a is equal to minus 1. And when I substitute z equal to 3, 3 minus 3 will become 0, and 3 minus 2 will becomes 1, so b is equal to 1. Therefore, I'm just writing this part here. This will becomes 1 upon z minus 3 into z minus 2. आगे पीछे लिख दिया है, इसमें कोई इश्यू नहीं. A is minus 1, so minus 1 upon z minus 2 plus 1 upon z minus 3. तो ये हमको मिल गया ये पार्ट. अब सिमिलरली फंक्शन लिखते हैं. सो कॉन्टोर इंटीग्रल साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z minus 2 z minus 3 into dz, which is equal to, so contour integral as it is. दोनों के साथ आपको लिखना है, तो माइनस साइन इसका बाहर लिख दिया मैंने. साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 हो गया आपका ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट. या आगे पीछे करोगे तो भी चलेगा, इसको आगे रखो, इसको पीछे रख दो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा आपका. इंटीग्रल साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z minus 3. Now we have to simplify this part. Similarly, तो यहाँ पे देखोगे तो सबका 1 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. तो सिमिलर वे जैसा प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था, ये माइनस साइन एज इट इज 2 पाई आ जाएगा, फॉर्मूले में दिया गया है, इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 3 हो जाएगा ये पार्ट. एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 मतलब क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर एफ ऑफ जेड इक्वल टू, वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्या है एफ ऑफ जेड, साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, माइनस 2 पाई आई. एफ ऑफ 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सो व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग एफ ऑफ 2 हियर यू विल गेट व्हाट, साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई. तो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग साइन 4 पाई plus cos of 4 pi plus 2 pi I as it is. f of 3 इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो you will get what, sin 9 pi, you will get sin of 9 pi plus cos of 9 pi. तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं. अब यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही बचा है. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू विल लर्न अ सेम 3, यू विल लर्न वन थिंग, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई n इज इक्वल टू होता है 1 एंड साइन ऑफ 2 पाई n होता है 0. या अगर नहीं पता तो आप अपने कैल्सी में या वैल्यू रख लेने का और सीधा आपको रिजल्ट मिल जाएगा. बट कैल्सी मस्ट बी इन रेडियंस, कैल्सी आपका रेडियंस में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये कॉन्सेप्चुअल है. तो साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, बिकॉज इवन नंबर ऑफ पाई रहे या ऑड नंबर ऑफ पाई रहे. अगर यहाँ पे मैं लिखूं कॉस ऑफ n पाई तो ये होता है प्लस माइनस 1, और साइन ऑफ अगर 1
n पाई लिखूं मैं यहाँ पे तो ये होता है 0। तो कॉस में अगर इवन नंबर ऑफ पाई है, जैसे यहाँ पे क्या है कॉस 4 पाई, तो इवन हो गया तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 हो जाएगा। साइन ऑफ n पाई है तो 0 सीधा, तो साइन तो दोनों जगह 0 है, लेकिन यहाँ पे ये -1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट -2 पाई I into 1 plus into 1 plus 2 pi I into -1. Why -1? Because this is odd number of pi. So minus minus, this part will becomes adding, and the final result contour integral of sine of pi z square plus cos of pi z square upon z minus 2 and z minus 3 into dz, which is equal to minus 4 pi I. So this is our final result. So hope things are clear to everyone. So this kind of a problems is going to be asked in examination. Now from next lecture we will start the next type. This is type 2, very easy type. इधर तो inside आया है। अभी आगे ऐसा रहेगा कि यहाँ पे सेंटर आपने देखा होगा सर्कल का, तो इट वाज 0,0, तो दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जब सेंटर आपको मिलेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सो दैट टाइम इट इज important. Now anyone having any doubt? सर थोड़ा वही क्वेश्चन पूछना कि सेम 3 का पोर्शन भी चेंज हुआ है क्या थोड़ा सा, पूरा सेम 3 का पोर्शन? सेम 3 सिलेबस भी आपका चेंज है, काफी चेंज है। उसमें सिर्फ Okay. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ, यही सिलेबस खाली सेम है। रेस्ट ऑल द सिलेबस आर चेंज। लाइक फूरियर सीरीज नहीं था पहले, तो फूरियर सीरीज भी आ गया है वहां पे। तो सर ये 2021 का 2020 का बुक रिफर करना पड़ेगा ना लेना हो तो? हाँ, 20 and 21. ओके 20 and 20. थैंक यू सर। Yeah. Now I'm just sharing the link for the attendance. So you people have to give the attendance. सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बोलो बोलो। सर हमें कैल्सी कौन सा यूज करना होगा? साइंटिफिक कैल्सी आता है ना आपका, वो कैल्सी यूज करो। जस्ट अ सेकंड, आई विल। डिप्लोमा वाला कैल्सी ही चलेगा ना? डिप्लोमा वाला डिप्लोमा वाला कैल्सी कैल्सी ही चलेगा ना? मैं बताता हूँ आपको कौन सा कैल्सी चलता है बेसिकली। आई एम जस्ट टेलिंग यू। Sir, can you go back on the sum for a second? या मैंने लिंक शेयर किया है, वो प्लीज आप फिल कर दो अटेंडेंस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर पर्सनल आईडी से किया है तो परमिशन डिनाइड आ रहा है। नहीं तो पर्सनल आईडी से कैसे एक्सेप्ट होगा बेटा? गूगल सर नहीं मिला है। सर यूनिवर्सल आईडी नहीं मिला है। नहीं मिला है? हाँ सर। कभी मिलने वाला है? सर मैम का मैसेज आया ग्रुप पे कि कल मॉर्निंग तक मिलेगा। कल मॉर्निंग मिलेगा? हाँ मैम सर हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाला कौन सा डाला है रोल नंबर? रोल नंबर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, मैंने उसको कंपल्शन में नहीं रखा है। और ईमेल आईडी यूनिवर्सल का डाला है या अपना पर्सनल डाला है? पर्सनल डाल दो, कोई बात नहीं। अभी नहीं मिला है तो पर्सनल नहीं एक्सेप्ट नहीं कर मिला रहा। है, हम लोगों को मिला है। हाँ जिसको आधे मिला है लोगों को वो, मिला है, आधे लोगों को नहीं जिसको मिला मिला है वो हाँ। आप क्या नाम है यूनिवर्सल ही पुट करेगा, और जिसको नहीं मिला है वो पर्सनल फिलहाल के लिए डाल दे। थैंक यू सर। ओके हाँ yes Sir, am I audible? yes please go ahead. Sir, can you please provide us updated syllabus? हाँ Update syllabus for SEM 3 and SEM 4. Can you please हाँ, मैं provide us? लेक्चर के बाद अपडेट करता हूँ उसमें क्लास में। Okay, sir. Thank you. सर रोल नंबर नहीं पता मुझे तो क्या करूँ सर? उसको छोड़ सकते हो, आपके लिए वो कंपल्शन नहीं रखा है मैंने। हाँ सर।
उस पर स्टार मार्किंग नहीं है ना, मतलब वो कंपल्शन नहीं है, अगर है आपके पास तो ही आप फिल करो। ओके सर। सर आप गूगल क्लासरूम का लिंक सेंड करना सेम 4 का। करता हूँ मैं लेक्चर के बाद, लेक्चर किया हूँ ऑलरेडी मैंने ना, इस पे किया है। SCIT इसमें DSC IT पे हो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, यस सर। तो उसमें क्या है देखो, सर यूज उसमें दिस सेम लिंक। 3 का है। नहीं नहीं नहीं, आप देखो सेम 3 भी किया हूँ और सेम 4 भी किया हूँ। मैंने नीचे कमेंट किया है, यूज दिस लिंक फॉर EM4G क्लास एंड यूज दिस लिंक फॉर EM3G ओके क्लास, ओके। दोनों का किया है, आप एक बार अच्छे से देखो। ओके, एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? सर ईमेल एड्रेस क्या डालने का? यूनिवर्सल का मिला ईमेल एड्रेस?